Very good. Afternoon to all of you, beta. We have started with chemical thermodynamics. Okay, yeah, recording कर दिया. अच्छा, we have studied about everything, parameters, different parameters. We studied what is system, what is surrounding, universe, then what types of system, open, closed, then extensive and intensive property. Hey baby, scope of thermodynamics, drawback of thermodynamics. Then we studied what are state variable, state function, path function. In entire chapter, there are only two path function, work and heat. Then beta, we have studied work done on isothermal, irreversible. Then we did beta, work done during chemical reaction, W is equal to minus delta NGRT. Then beta, we have done वो प्रॉब्लम हो गया है उसमें रिपेयरिंग के लिए गया पुराना वाला then we did irreversible and reversible. Whenever maximum work is done, it will be isothermal reversible process. Isothermal reversible. ठीक है. Then beta, we did derivation for maximum work done, W max minus 2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1 or P1 by P2. Then we have done internal energy. Hey, what is internal energy? Sum of all the energies. Right, beta? It is directly proportional to temperature. We did then first law of thermodynamics. We did this delta U is equal to Q plus W. Then beta, in last class we have done beta numerical based on W is equal to minus P delta V. When we use this formula heat, when it is written irreversible and isothermal. When we use W max beta, when it is written isothermal and reverse. अच्छा बेटा इसमें ना sometimes they won't give you the value of n, तो n की जगह पे हम लोग को क्या डालने का बेटा, given mass upon molar. When you will come to know that we have to use this sum beta, when in sum what will be written, isothermal and reversible. Isothermal and reversible. Then work done, if they give chemical reaction data, when what is numerical we did, W is equal to minus delta Ng RD. Delta Ng is what, number of moles of gaseous product minus gaseous reactant. Gaseous ही लेने का. अच्छा एग्जाम में लिखा रहेगा फॉर 4 मोल्स, बट एग्जाम में लिखा रहेगा 2 मोल्स, तो पूरे इक्वेशन को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से. We did that numerical in the class. Delta U is equal to Q plus W. In exam beta, they will not give you the value of Q. They will give you the value of Q and W, but they will not say whether it is plus or minus. That we'll have to decide. Work done by the system means anything against the gravity will be negative. Work done by the system or system किस पे काम कर रहा है, on surrounding. So on surrounding, it is what beta, negative. Work done on the system or by the surrounding, it will be what beta, positive. Heat lost, Q negative. Heat absorbed, Q positive. So all this we did this terms you should know. Then beta when R ka value is 0.0821 if it is in atmosphere per liter, and when Newton per meter square and meter cube, then it is 8.314. Then beta I give you one conversion also. If they tell liter atmosphere into joule, then you have to multiply by 101.3. But if they say beta bar dm cube into joule, then we have to multiply by 100 joules. ये शॉर्टकट में सम करने का, तो आर का वैल्यू व्हाट यू शुड टेक 0.082. आर का वैल्यू शुड बी 25/3 एंड 2.303 को क्या लेने का, 9/4. Then beta after this we did processes. Do you remember beta isothermal process, and we did all this by using first law of thermodynamics. Remember beta, then we did isochoric, right? Volume remains constant. Then we did beta isobaric. Heat pressure remain. बार में क्या होता है, pressure. Then we did adiabatic. Adiabatic expansion will, cooling will take place. Adiabatic compression means adiabatic compression means what, heating will take place. Clear है ना, ये सब किया था हम लोगों ने. Then इससे फिर enthalpy किया था. What is enthalpy? It is the sum of all the energy as well as pressure volume. Suppose if I'm a gas, then I have my total internal energy U, but I can compress or expand, so I can do which work, PV work. So enthalpy is equal to U plus PV. Then we did this derivation. In exam, they will tell you derive delta H is equal to delta U plus P delta V. This is for expansion or compression. But beta, if it is for chemical reaction, then instead of this P delta V, what will come beta? Plus delta Ng RT. They will ask this derivation, derive relation between delta H and delta U for chemical reaction. Then beta, we did 3 conditions. Right beta, we did 3 conditions where delta H is equal to what beta? Delta U. ठीक है, ए घटा दे, ए आगे बैठ चल यहाँ पे फर्स्ट बेंच पे.
ए ए डेल्टा एन जी इज व्हाट बेटा? अगर डेल्टा एन जी 0 होगा तो क्या होगा? डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू. डू यू रिमेंबर दिस? Then beta we did all these condition beta, and when what are the other two condition? Tell me. डेल्टा v 0 होगा तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? अरे डेल्टा एच विल become to delta u or not? Tell me. And third condition is what beta? When pressure is 0, that is when beta vacuum. या आर यू गेटिंग इट बेटा? ये तो ये 0 हो जाएगा तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू. कुनार बेटा यहाँ पे ध्यान दे, तो ये सब हम लोग ने कर दिया था. फिर लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको है ना, फिर हम लोग ने ये भी कंडीशन किया था. ए व्हेन डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू, व्हेन डेल्टा एन जी विल बी पॉजिटिव, व्हेन डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू बेटा, व्हेन डेल्टा जी विल बी, and when both are same then delta H is equal to delta U. Then beta we started with standard enthalpy. If any Kunar beta, if anything is in metal solid form, metal कोई भी solid form में होगा, अकेला होगा तो उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच 0 कितना होगा? 0. क्लियर है? अच्छा कोई भी गैस होगा, सिंगल गैस होना चाहिए बट मल्टीपल फॉर्म में, मतलब CO2 नहीं, सिंगल एलिमेंट का बना हुआ गैस. O2N2 देखना सेम एलिमेंट है ना, O3P4S8, इनका डेल्टा एच कितना होगा? 0. डेल्टा एच विल बी 0. अब बेटा आपको ना सम्स हम लोग को करना है बेटा, ठीक है? अगर आपको बोलेगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ढूंढो, क्या ढूंढो? तो व्हाट इज द फॉर्मूला बेटा? टोटल एंथैल्पी इज व्हाट बेटा? टेल मी. सम, ये क्या होता है? समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. इसका मतलब क्या है बेटा? सपोज बेटा मैंने अगर आपको ऐसा कोई रिएक्शन दिया, देखो यहां पर गौर से, आई विल एक्सप्लेन इट, डोंट वरी. Hey, Gauri beta, you will answer this. If I given you this nitrogen plus hydrogen, then gives me ammonia. तो इसका अगर if I tell you delta H, तो what it will be बोलो? Delta H, summation of delta H of what? Product minus delta H of summation, ऐसा लिखते हैं रिएक्टर. प्रोडक्ट में कौन कौन दिख रहा है तेरे को बोल? NH3 ना. तो मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा एच ऑफ ए. अली बेटा बहुत चिंदी है, देख डेल्टा एच ऑफ NH3, इसके आगे कोई नंबर है? तो 2 माइनस, फिर क्या करेगा बोल बेटा? डेल्टा एच ऑफ N2 प्लस डेल्टा एच ऑफ H2. N2 का आगे कोई नंबर है? नहीं है, मतलब 1 है. इसके आगे क्या नंबर है? बस ऐसा डालने का. समझ में आ रहा है? तो भी आप बोलोगे सर ये सब वैल्यूज वो लोग एग्जाम में देंगे, ये सब वैल्यूज वो लोग एग्जाम में डेल्टा एच का वैल्यू दे विल गिव. आर यू गेटिंग इट और नॉट? टेल मी. बहुत चिंदी समय 2 मार्क. हाँ हाँ, टेबल हिल रहा है तो आगे आ जाए इधर फर्स्ट में. हाँ तो फिर I think you should. या यू शुड लिसन टू तिलोड़ा. एनीवेज ओके चलो बेटा आ जाए. बस ये बहुत इजी है बेटा, दिस न्यूमेरिकल इज वेरी वेरी इजी. नाउ नाउ इस पे मैं आई एम गिविंग यू वन न्यूमेरिकल एंड यू हैव टू टेल मी. अच्छा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एनी मेटल और गैस विल बी व्हाट? सिंगल एलिमेंट गैस विल बी व्हाट? 0. Now suppose beta if I give you this numerical, how you are going to do this? Tell me. Okay, चलो बेटा आ जाते हैं इधर पे. द वेरी फर्स्ट numerical, हाँ ये रहा आपके सामने. पेज नंबर इज 87 के बाद 88 में ये 9th वाला सम. चलो दिस नैया कक्कर, यू हैव टू टेल मी हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस. यहाँ पे देखना, पहला तू बोर्ड पे देख. चल क्या बोला है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, ए भाई क्या बे राजू श्रीवास्तवा, क्या हो गया तेरे को? यस आइए ना. आज सब बच्चे आज होलसेल में एब्सेंट है, बीमार हो गए. ये बात अभी बैठी. हाँ चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. और मैं बंद कर दूंगा, मैं बस शादी को
बात करने को नहीं बोला है, सबको सम सॉल्व करने का है। टेल मी, नया कक्कर। आई वॉन्ट यू, ऑल ऑफ यू। उसको बोला मतलब सब लोग बात, ए गौरी डिनर खाना खा लिया। हट। तो मैंने नहीं बोला। कुछ नहीं बोला, यहाँ पे ध्यान दे। ए मानस उठ रहे, उठ। इधर आ, उठ, तू फर्स्ट बेंच पे बैठ इधर। नहीं करो तो पता है इसको जरूर। गौर ए, व्हाट दे हैव टोल्ड अस टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ए भाई कपूर कहाँ खो गई है बेटा, ये देखिए ढूंढने का, डेल्टा एच ढूंढने का। यहाँ पे अभी बेटा क्या बोला है, प्रोडक्ट में कौन कौन है? ऑल ऑफ यू, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन कौन है बोलो, सब लोग बोलो साथ में। तो डेल्टा एच एफ ई प्लस डेल्टा एच। अच्छा, अभी डेल्टा एच CO2 और ये इसका फॉर्मेशन वो लोग ने दिया हुआ है, डेल्टा एच एफ मतलब फॉर्मेशन। अच्छा, ये इसके आगे क्या नंबर है? 2। इसके आगे क्या नंबर है? माइनस। प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कौन कौन है? डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, Fe2O3 प्लस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, CO2 3 कैसे 2 है भाई? ए ध्रुवीन, आएगा भी वो। अरे घुसना अंदर। ए ध्रुवीन बेटा, हेलो ध्रुवीन, आवाज आ रही है? नहीं सर। देख बेटा, आज हम लोग आ रही है प्रैक्टिस कर सर। रहे हैं बेटा। कभी भी बेटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलेगे तो क्या करने का? ए डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करने का। ध्रुवीन बेटा, रिएक्ट प्रोडक्ट में कौन कौन है देख, Fe है कि नहीं, तो देख Fe, फिर CO2 है तो CO2। व्हाट नंबर इज रिटन हियर, 2, तो यहाँ पे 2 लिखा। यहाँ पे क्या था, 3, तो 3 लिखा। रिएक्टेंट में कौन है, Fe2O3, फिर डेल्टा, ये CO के आगे कौन सा नंबर है? नाउ स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? देगा भी कान के नीचे सब बोल देगा। ये आया ना अभी आगे, ये दिख रहा है कि नहीं? तो फिर वो CO3 बोल रहा था, CO के आगे 3 आएगा। कोई भी अकेला एलिमेंट होगा उसका डेल्टा एफ क्या होगा, व्हाट इट विल बी, 0। तो अभी इसमें से किस किस का वैल्यू दे दिया है, विच ऑल वैल्यू दे हैव गिवन? देखो यहाँ पर सब में दे दिया, Fe2O3 का वैल्यू, CO का वैल्यू देख, Fe2O3 का दे दिया है, CO का दे दिया है, CO2 का भी दे दिया है कि नहीं बोलो? बट Fe का दिया है क्या? तो Fe का हम लोग अकेला एलिमेंट होगा उसका क्या होगा, 0। बस अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट, देखा कितना इजी है सम्स। बस ये डायरेक्ट वैल्यू, इसमें हम लोग कभी क्या करेंगे, 2 इंटू क्या डालेंगे, 0। CO2 का कितना वैल्यू था बोलो बेटा, 3 इंटू क्या, -39। खाली सबका यूनिट देख लेना, सब किलो जूल है तो सब किलो जूल, अगर बाई चांस कोई भी जूल मिलेगा तो विल कन्वर्ट दैट। फिर इसमें ये पूरा ऐड करने का, फिर Fe2O3 का कितना है बोलो बेटा? हाँ, फिर ये CO के आगे क्या था, 3, क्या है बोलो बेटा? हो गया, सम हो गया, कितना इजी है बेटा, बस हो गया, ठीक है ना? कभी कभी वो लोग क्या करेंगे बेटा, ये डेल्टा एच आपको दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, और इन 4 में से किसी एक का नहीं देंगे। क्लियर है? वैसे भी सम कर पाओगे, फॉर्मूला विल रिमेन वन एंड द सेम। तो भी आप बोलोगे सर ये सम आपने कहाँ पे सॉल्व किया ये वाला, तो अगर आप अपना नोट्स देखोगे, लुक यार, ये नोट्स में ये देख, ये खाली वैल्यूज चेंज हो गया रहेगा, बस देख लेना वैल्यूज उसमें मैंने, ये पुराना टेक्स्ट बुक का इसके लिए, दिस सम वी डिड, आर यू गेटिंग इट? नेक्स्ट सम में बेटा यहाँ पर देखो, ये सम में वो लोग ने क्या दिया था, सुन लो अच्छे से।
लिसन दिस सम मैं आपको बता देता, ये न्यूमेरिकली आपको बता देता, सुनो। आप चाहिए तो थोड़ा यहाँ पे ये डाल दो, टू फाइंड लिख दो। टू फाइंड क्या बोला मैंने आपको, पता है क्या? डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C2H6 क्या दिया है, ये फाइंड करना है। ओके, दिस वी हैव टू फाइंड। व्हाट एल्स दे हैव गिवन, लुक डेल्टा एच दे हैव गिवन, व्हाट एल्स दे हैव गिवन इन दिस बेटा, delta H of water they have given, delta H of CO2 also they have given। डेल्टा एच ऑफ वाटर कितना है बेटा, ये देखो -285.8, ये दिए दिया है। CO2 का कितना दिया है, -393.5, और H2O का भी H2 का हो गया, CO2 का हो गया, बस इतना दिया हुआ है। और ये डेल्टा एच दे दिया है हम लोग ने, रिएक्शन का दे दिया है, दिखाई दे रहा है। और आपको ढूंढने का किसका है, C2H6 का, किसका ढूंढने का है? इसमें से हु और वैल्यू यू नो बेटा, यू नो द वैल्यू ऑफ CO2 H2O, इन दोनों में से आपको बेटा, आप बोलोगे सर O2 का नहीं दिया है, ये O2 अकेला गैस है, तो उसका कितना होगा बोलो बेटा, तो ये भी हमको पता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, पूरा फॉर्मूला देख, सेम लिखा है, देख रहा है, प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट में CO2 कितनी बार था, 4 बार, ये कितना था बोलो 6, ये रिएक्टेंट कितना है 2 टाइम्स, ऑक्सीजन कितना था बोलो बेटा 7 टाइम्स, लेकिन ऑक्सीजन का वैल्यू कितना है 0, इसका हमले को मालूम नहीं, इसका हमको मालूम है, इसका भी मालूम है, और ये डेल्टा एच का भी इजी बेटा, फॉर्मेशन कितना इजी है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कर पाओगे ऑल ऑफ यू? चलो वेरी गुड, ये आप लोग ने ये इसमें लिखा, ये टू फाइंड डेल्टा एच इज हाउ मच, और ये दो वैल्यू लिख दो बस राजू, ठीक है? क्या मतलब, तो ध्यान देने का था ना, इतना बातें कर रही थी। दिस इज द गिवन, ये न्यूमेरिकल में दिया है, एंड टू फाइंड देव आस्क्ड दिस, ओके। हाँ बस, यू टू जस्ट सब्स्टिट्यूट, और कुछ नहीं है बेटा, डायरेक्ट सम है, 2-2 मार्क के लिए आते ये सम, वेरी इजी। ओके, डन डन डन। नाउ बेटा, पूरे पूरे चैप्टर में एवरीवेयर वी विल राइट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, देयर इज ओनली वन प्लेस वेयर वी आर गोइंग टू राइट व्हाट बेटा, ले भाई, लिखने का लिख लिया ना सबने, ओनली वन प्लेस वी विल राइट रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, व्हिच इज दैट प्लेस, लेट अस सी। बेटा यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पर ये पेज देखो, आज हम लोग ने ये पेज से स्टार्ट किया, स्टैंडर्ड एंथैल्पी दिखाई दे रहा है ना, अभी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गया, ये फॉर्मूला था बेटा, क्या था फॉर्मूला, व्हाट वाज द फॉर्मूला बेटा, प्रोडक्ट माइनस who was the product our, can you see, this was this, and this was C moles, this was D moles, right? We did this right now only, this is your reactant, this was how many moles, A moles, and this was B moles. When we have to use this formula, enthalpy of reaction, if in exam what they will tell beta, if what is given, if this is very important, if bonds are given, minus what if is given beta, if bonds are given, then what is the formula beta, tell me? Delta H, enthalpy of number of bonds in reactant minus total number of bonds in product. Acha, what type of Manas reaction? They will just give you this reaction. CH4 reacts with Cl2, gives you methyl chloride and HCl, and they will tell you find delta H. Okay, wait, गैस नहीं, इसमें सब अभी गैस वाला वो गया, ये खत्म भागल, ये सब नया है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं है, यहाँ पे अभी क्या होने वाला है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ये क्यों करने का, व्हेन यू विल डू दिस एग्जाम में, ये लोग तेरे को बॉन्ड का वैल्यूज देंगे बेटा, कैन यू सी दे हैव गिवन द वैल्यूज ऑफ बॉन्ड, अरे कैन यू सी द बॉन्ड्स आर गिवन, कैन यू सी, मैंने यहाँ पे ABCD लिखा है, एग्जाम में ये कोई वैल्यू होगा, आर यू गेटिंग इट और नॉट? इन CH बॉन्ड को ब्रेक करने में कितना एनर्जी चाहिए, 10, इसको 20, 30, दे विल गिव सम वैल्यू, आई हैव रिटन ABCD, राइट? अच्छा मानस बेटा, whenever such question will come and if this table is there, what you'll do, you'll split this, you will write all this in the form of bonds. हाँ तो मैं बताना, CH4 में कितना बॉन्ड होता है बोल बेटा, हाँ तो क्या करेगा तू, CH, हाँ नहीं, CH को ऐसा लिखेगा स्प्लिट करके, दिखाई दे रहा है, ये CH4 है, विल राइट इट,
Cl2 में क्या होता है? Cl वन बॉन्ड और नॉट, टेल मी। CH3Cl में क्या होता है, बोलो बेटा? 3 है हाइड्रोजन और 1 Cl। और HCl में क्या होगा? अभी मेरे को बताओ, रिएक्टेंट में कितने बॉन्ड है? CH बॉन्ड कितना है रिएक्टेंट साइड में? दिस इज रिएक्ट, हाँ तो 4। तो यहाँ पे क्या लिखा था, ये दिख रहा है? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? डेल्टा CH4 टाइम्स, दिख रहा है क्या? ये 4 क्यों आया? 1 2 3 4। फिर Cl कितना है? 2 कैसे? एक है बॉन्ड, ये बॉन्ड देख, बॉन्ड एक ही बॉन्ड है ना, देखना। ये हो गया, रिएक्टेंट खत्म। अभी प्रोडक्ट में कितना CH है, काउंट कर, 1 2 3। तो ये डेल्टा 3CH, 3 क्यों आया ये समझा? CCl कितना है? हाँ तो देखिए डेल्टा HCCl है। HCl कितना है? ये HCl है बेटा। बस अब समझ में आया? अभी वो लोग ने वैल्यूज दिया है कि नहीं, बोलो। ए भव्या बेटा, CH का वैल्यू कितना दिया है, बोल। ये देखना, ए। तो यहाँ जहां पे भी CH है, व्हाट यू आर गोइंग टू पुट? वेर एवर देयर इज CH, व्हाट यू आर गोइंग टू पुट? A. Wherever CL is there, you will put B. B नहीं होगा, that will be some value. That will be some value. क्या रे? CH कितना है? 3CH, तो इसका वैल्यू कितना था? You will put here A. CL कितना है, बोलो बेटा? हाँ बस वो वहां पे वो सब वैल्यूज डालने का। CCl का ये डालेगा C। और ये HCl का क्या डालोगे? ये HCl बराबर दिख रहा है तुम्हारे नोट्स में, देखो देखो एकदम नीचे दिखा क्या बेटा? अगेन आई एम टेलिंग यू, थर्मोडायनेमिक्स न्यूमेरिकल्स आर वेरी इजी। अरे द लास्ट वन डियर, this look, I'll show you the numerical. What? This is exception. अब तक प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हो रहा था ना, पहली बार क्या हो रहा है? रिएक्टेंट माइनस। दिस वाज बेटा, ये था, ये ले एक्सेप्शन। Okay, I'm going to give you the numerical. Let us see where is the numerical. Disturbing the decorum of the class, man. What, man? This is not done. इथेन किधर है भाई? ये इसने मुझे सिखाया था। इसने सिखाया था। ये कौन है? ये जिया। वो एनीवेज हो गया। हाँ चलो, वो मैंने कैमरा बंद करके रखा था। या अरे वो मैंने यूट्यूब पे देखा था। ए बस बस सर कॉन्ट्रैक्ट चालू था। बस बेटा, लाइफ में बहुत बहुत सारे अलग काम भी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बेटा, ये समझा ना न्यूमेरिकल? ओके, ये थैंक यू क्यों आ गया? अरे ये ये लेक्चर नंबर क्या था? 6 था ना ये? 6 देखो बच्चे लोग, मैंने तुमको अभी ये बताया ना बेबी लोग, ये देखो डिंग डिंग डिंग। अरे जा रे भाई, ओ ओ। अरे व्हाट मैन, क्यों ये? मैं तुमको बॉन्ड वाला बता रहा हूं, मस्त समय, एक एक मस्त समय, वेरी इजी। We did all this, enthalpy of phase changes, remember ना बेटा? हाँ देख, भाई ये देखिए, आज मैंने तुमको कराया बेटा एंथैल्पी। टोटल चेंज ऑफ व्हाट बेटा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज व्हाट? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है बेटा? फिर बेटा ये इसका फॉर्मूला क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी व्हाट? बता आंसर फटाफट। अरे उस वो सब जानते बेटा, ये सब जानते बेटा।
क्या यार, ये तो खत्म हो गई। अरे मेरा यूट्यूब ही चला है। Oh yeah, got it, baby. Hey, we now did this. Manas beta, total number of which bond? Reactant bond minus total number of bonds in product. Formula for bond है। बॉन्ड में क्या होगा? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ये ना। ए एनर्जी रिक्वायर्ड टू बॉन्ड, ए मेरे को कभी भी बॉन्ड ब्रेक करना तो आई टू सप्लाई एनर्जी और नॉट, टेल मी। सो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। चलो बेटा, ये सम आ गया बेटा, अब भी हम लोग ने किया था। देख यहाँ पे आपको बॉन्ड लेंथ दिया है कि नहीं, बोलो। ये बॉन्ड का वैल्यू दिया है कि नहीं, बोलो। तो आपको दिमाग में आ गया, व्हेनेवर बॉन्ड इज गिवन व्हाट यू हैव टू डू बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो बहुत अच्छे से समझ दिया, देख रहे हैं बेटा। ये देखिए, दे दिया अपने को, फाइंड क्या बोला है, डेल्टा एच। डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या है, बोलो, रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस बॉन्ड्स इन प्रोडक्ट। अब ये CH4Cl2 को मेरे को स्प्लिट करके लिखना पड़ेगा कि नहीं। ये देख बेटा, मैंने स्प्लिट करके लिख दिया, ये देख तिलोड़ा, ये देख बेटा, ये फॉर्मूला में डाला। CH बॉन्ड कितना है रिएक्टेंट में, 4। Cl कितना है, हाँ। एंड हाउ मेनी CH बॉन्ड इन प्रोडक्ट, हाउ मेनी CCl बॉन्ड, हाउ मेनी HCl बॉन्ड। अच्छा, they have given all these values बेटा, you have to just substitute these values। दिखाई दे रहा है बेटा, values are given, you will get the answer, so easy। समझ में को आया क्या, बोलो हेलो। चलो बेटा, अच्छा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी इट विल बी व्हाट, ऑलवेज एंडोथर्मिक। अभी क्या बोला है, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ एन OH बॉन्ड इज हाउ मच, 109 व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म, 1 मोल ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म। अभी वो लोग ने क्या बोला है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन बोल, बॉन्ड ब्रेकिंग इज व्हाट, एंडोथर्मिक, बट बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सो, एनर्जी इज रिलीज। क्या बोला है, 1 मोल पानी बनेगा, 1 मोल पानी में कितना H होता है, OH कितने बॉन्ड है, बोलो बेटा, 2 है कि नहीं। एक OH का कितना दिया है, 100 तो 2 OH होगा तो कितना हो जाएगा, इसका भी 109 एंड 109 तो कितना हो जाएगा, 280। बट फॉर्मेशन बोला है, फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सो, so 218 energy is released। दिखाई दे रहा है बेटा, ये देख रहा है, रिलीज क्यों आया, फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ये अभी क्या बोला है, ये तो कितना है, बॉन्ड एनर्जी फॉर H तो बहुत इजी है बेटा, जाने लगे। चलो बेटा, अरे वो मैं सब बताता हूँ, ये ले भाई, क्या बोला है, 4 ग्राम गैसियस हाइड्रोजन है, 4 ग्राम। एक H2 मतलब 2 ग्राम होता है कि नहीं। तो अगर वो लोग ने कितना बोला है, 4 ग्राम बोला, मतलब कितना H2 होगा, 2 H2 होगा कि नहीं। 2 H2 होगा तो कितना, अपने को बॉन्ड कितनी बार ब्रेक करना पड़ेगा, एक HH का ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा और एक HH का 2 बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब वो लोग ने 4 ग्राम के लिए, अच्छा, और वो लोग ने क्या बोला है, 4 ग्राम के लिए कितना एनर्जी दिया, बोलो बेटा। अरे 4 ग्राम होगा तो कितना था, 2 हाइड्रोजन था, बराबर है कि नहीं। और उसको ब्रेक करने के लिए मतलब कितने थे, ऐसे HH कितना था, इतना ब्रेक किया तो कितना एनर्जी दिया है, 208। अभी वो लोग ने क्या बोला है, एक HH ब्रेक करने का है, हाँ, तो 2 के लिए 208, तो एक के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, हाफ हो जाएगा कि नहीं, बोलो। अभी ये समझिए कैसे करोगे, चलो बेटा। और इसमें क्या बोला है आपको ढूंढने के लिए, बोलो, डेल्टा एच ढूंढने का है। क्या ढूंढने का है, तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, CH4, यू शुड नो हाउ टू राइट दिस CH4। नेरिसा, सिनेल, आर यू गेटिंग इट, देखो वापस। हु इज दिस Zoom Yes, user? sir. हाँ, Yes, sir.
Who is Zoom user? Elroy, you are there? Hello? तो ये Zoom user कौन है? सर ये क्लास में बैठ के किसी ने ज्वाइन किया होगा। कौन है? नहीं सर, धैर्य धैर्य सर, धैर्य हो। हाँ, धैर्य। ओके, एनीवेज, चलिए युवराज। ओके, ये युवराज मेरा फोन दे दे मेरे को पहले। एक और कॉन्फ्रेंस देता मेरा भी फोन दे रही है। देखो बोल दादा मुन्ना हो गया भाई। अरे बाप रे, ये टच करके देख। माय गॉड, जो एक गेम now what we have to do in this case? Come on, ये युवराज, they have given bond or not, tell me. So first you have to write this in split form. बेटा बहुत इजी सम है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, ये रायन एंड मानस। You'll write CH4 in split form, beta. Are you getting it? अच्छा, they have given bond का value, right? So you know that O is double bond and C double bond is also double bond here. So number of reactant bond minus product. Now we have to write this CH4. This CH4 we are going to write in the split form. CH4 is methane. Methane में सब सिंगल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन O के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड। और ये बेटा कभी आपने ये कंपाउंड देखा? ये क्या है? इसको आप लोगों ने ये कभी ऐसा पढ़ा? ये नहीं, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में ऐसा होता है बेटा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। फॉर्मल्डिहाइड है ये, मिथेनॉल। और H2 में कितने बॉन्ड होते हैं? HOH होगा कि नहीं बोल? तो देखिए स्प्लिट फॉर्म में लिख रहा हूं, ये देख, ये CH4 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये फॉर्मल्डिहाइड, ये लिखने को आना चाहिए। H2 में HOH। अभी क्या करेगा बोल? फॉर्मूला नंबर ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में CH बॉन्ड कितना है? यहाँ पे देख, वहां पे नहीं दिया, यहाँ पे देख कितना है? 4। फिर बाद में ऑक्सीजन में कौन सा होता है? O डबल बॉन्ड। बस हो गया ना, रिएक्टेंट खत्म। प्रोडक्ट में CH बॉन्ड कितना है? 1 और ये 2, तो कितना होगा बेटा? 2। C डबल बॉन्ड हो कितना है गौरी? 2 कैसे? C डबल बॉन्ड हो एक ही है। OH बॉन्ड कितने हैं? OH अरे देखना, 1 and 1 यार ना बेटा। बस अभी सबका वैल्यू दिया है, देख बेटा, ये देख, ये वैल्यूज दिया है ना, बस डाल दो, है हो गया सब। कितना इजी है बताओ। कभी कभी वो लोग क्या कर सकते हैं हीट बेटा, वो लोग आपको ये डेल्टा H दे देंगे। क्या दे देंगे? और इसमें से किसी एक का वैल्यू बोलेंगे ढूंढने को, तो कर पाओगे। तो यहाँ पे अपने को डेल्टा H पता होगा और इसमें से किसी एक का पता नहीं होगा। आर यू गेटिंग इट और नॉट? बट व्हेन टू यूज दिस फॉर्मूला, व्हेनेवर दे विल गिव यू ये बॉन्ड का ये ऐसा टेबल देगे, बॉन्ड का ये टेबल देगे ना, तब समझा ना? इजी? इजी और नॉट? टेल मी बेटा, यू आर जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, विल गेट द आंसर। अभी ये वाला सम करते बेटा, आ जाओ। रायन, हाउ विल यू डू दिस सम? व्हाट दे हैव टोल्ड यू टू कैलकुलेट यार? कैलकुलेट व्हाट बेटा? CCl. And they have given table again or not? Tell me. And they have given delta H. Look, just now I told you ना बेटा, ये देना काना खाली ना लोने बात दिख रहे तो खाली मुंह नहीं चलना चाहिए, देखना चाहिए सिर्फ। मुंह से देखती क्या? ठीक है, ओके। एनीवेज, चलो नाव्या बेटा, व्हाट यू विल डू हियर? CH3Cl, तो यू हैव टू राइट इट इन द स्प्लिट फॉर्म और नॉट? टेल मी। ए रायन, ये तेरे को बोल रहा हूं, रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड। हाँ, तो अभी पहला CH3 को तेरे को स्प्लिट फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि नहीं? ये देख, दिखा, Cl भी स्प्लिट फॉर्म है। CH2Cl में कितना CH बॉन्ड होगा? 2। हाउ मेनी CCl बॉन्ड? 2। HCl is how much? 1. अच्छा, and we know the value of delta H, huh? Look, so now reactant minus product, so how many reactant में CH bond are there? Tell me. Hey Ryan, tell me how many? 3 CH. How many CCl bond? क्या 4? ये CCl 1 ना? Can't see or what? How many CL? Product में how many CH is there? Tell me. 2. Very good. How many CCl? 2.
How many HCl? And now we know बेटा देख, we know this 104, ये माइनस 104 दिया है बेटा तेरे को, और क्या दिया है बेटा, CH पता, तो इसके जगह पे तू X ले लेना, समझ में आ रहा है? बाकी सबका वैल्यू दिया हुआ है देख, अरे सॉरी CH का दिया हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, CCl, हाँ तो CCl को X, ही काला काला दिख रहा है ना, वो नहीं दिया है बेटा, बराबर है, इसको X, बाकी ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है और ये पता है, तो मिल जाएगा। अरे बोलो ना, वेरी वेरी इजी, आर यू गेटिंग इट बेटा? हाँ चिंदी मैन, दिस इज चिंदी, गॉट इट और नॉट, टेल मी बेटा, हेलो, इजी। देखो मैं बोल रहा हूँ अभी भी, थर्मोडायनेमिक्स बहुत इजी है, न्यूमेरिकल्स तो तुम लोग को सब लोग डराएंगे सीनियर, और ये टफ स्टेप कुछ नहीं है, देखा ना, इजी है ना अभी तक जो भी सम किया, तो फिर या सुना रहेगा कॉलेज में, सब लोग बोलते रहेगा ऐसा। हाँ बस बहुत अच्छी बात है, चल अभी चुपचाप बैठ। ये कौन भाग गया बाहर अभी? हमको बोला तो सर बात कर दो, हाँ। ऑनलाइन का ऑप्शन। अरे वो नहीं, वो लोग के ने, वो लोग के पेरेंट ने मुझे मैसेज किया था इसलिए मैंने, हाँ इतने, चलो पहले तक तो मालूम ही होता है सर। तू चुपचाप बैठो ना, ने तेरे को देगा राफ्टा। हाँ हाँ, तेरी पापा को ही बुलाएगा मैं भी। हाँ, नहीं नहीं सुफनी गेड़ी, चले दिस सम, ए बेटा, कपूर बेटा बोल, क्या करेगी बोल? कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी, रिएक्शन दिया है, पेज नंबर है बेबी 78, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी 79, ओ 79, 79, इन सॉरी 17, हाँ उसका चश्मा है, आज भूल गई है चश्मा, ठीक है, हाँ बोल तो, बात मत करना भाई, देखना इतना इजी समझा है। हाँ, यूट्यूब पे अपना वापस स्टैंडर्ड नहीं रहने तो स्लो चल रहा है। सर फोन ले लो सर। सर वो बंद तो कर दो। हाँ मैं दे देता, कोई बॉयफ्रेंड है उसको मैं डाल देता, आई एम विद माय अदर बॉयफ्रेंड एंड ऑल जस्ट, चलो बस हो गया, अभी आ जाओ इधर इधर ए बस, नो ए यार बेबी यार, अरे फर्स्ट हाउ विल कम टू नो दैट वी हैव टू डू बॉन्ड, shut your mouth, do your work. Hey, how will you come to know? How will you all come to know that we have to use this reactant minus product? यहाँ पे बॉन्ड लेंथ दिया है क्या? ये दिया है ना, देखना NH, हाँ वही बॉन्ड बॉन्ड डैश डैश बॉन्ड दिया है ना। अच्छा नाउ टेल मी हाउ टू राइट N2H4, ये N2H4 है, तो लो बेटा N ऐसा होता है बेटा, दिस इज, फिर हे बेबी अमोनिया, एवरीबॉडी नो अमोनिया, और आगे 2 है यार, ये देखो यहाँ पे ध्यान दो बच्चे लोग, अभी ये बताइए बॉन्ड दिया है, वी हैव टू फाइंड डेल्टा एच, डेल्टा एच का क्या फॉर्मूला है, प्रोडक्ट माइनस, अभी तू मेरे को बता रिएक्टेंट में कितने NH बॉन्ड है, काउंट 1 2 3 4, तो 4 डेल्टा NH, समझा? और कौन है बोल, NN है ना, फिर रिपोर्टर पोपटलाल गेड़े, समझ में आ गया, ध्यान दे यहाँ पर, बस ए बेटा यहाँ जो बेटा बहुत इजी समझे, 2 मार्क मिलेगा आपको, ए या अली यहाँ पे देख, ठीक है ना, ये वो सॉन्ग है या अली मदद, हाँ चल बेटा HH कितना है बोल बेबी, माइनस ए माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड इन, यहाँ पे ध्यान देना सब लोग, यहाँ पे एक मिस्टेक करोगे आप लोग, NH बॉन्ड कितना है 1 2 और, तो आप लोग ऐसा लिखोगे डेल्टा NH, लेकिन बेटा आप एक नहीं, आप यहाँ पे 3 लिखने की कोशिश करोगे, लेकिन आगे 2 लिखा हुआ है कि नहीं, तो 2 इंटू 3 तो कितना लिखने का, क्लियर है? अब बेटा NN का वैल्यू दिया है
HH का वैल्यू दिया है, NH का वैल्यू दिया है, डाल दो, हो गया। इजी, इजी और नॉट, टेल मी। देख, इसमें नंबर अगर आगे रहेगा तो विल मल्टीप्लाई, इसका जगह चेंज क्यों नहीं हो रहा है? नंबर नंबर दिया रहेगा आगे बोला नहीं सर मेरे को तो आप क्लास के बाहर निकाल देंगे। उसको भी आगे लो। इसको भी आगे लो सर। मैं पढ़ता हूँ मैं। सबका नंबर लगेगा, सबका नंबर लगेगा, डोंट वरी। आप लोगों से कहना लग गया है सर। सभी के नंबर लगेंगे, ठीक है? ओके ओके। प्लीज बेटा, हियर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, टू मल्टीप्लाई कर देना है बेटा, ठीक है ना बेटा? अभी भी नहीं उठ रहे। ठीक है, बस हो गया बेटा ये सम इजी। ओके चलो, सो ये बॉन्ड में यू हैव टू राइट नंबर ऑफ बॉन्ड इन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। बट अगर रिएक्शन दिया रहेगा, बॉन्ड नहीं दिया है इंडिविजुअली, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू बेटा, नंबर ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्ट। क्लियर? ओके, नाउ बेटा वी आर गोइंग टू डू फॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग? नाउ whenever I say, is this Nerissa and Shinel, are you getting what I'm trying to do? Hello? Yes, sir. Okay. Now, that Zoom user has gone. ध्रुवीन बेटा आ रहा है ना? बहुत इजी है बेटा। हेलो हाँ सर। दीप आ रहा है ना? येडे चलो ना, दिस गर्ल हियर यू विल डू ना। हाँ सर, आ रहे म्यूट था। चलो बेटा अभी आ जाओ। बेटा नीट कर रही है ना, तू नीट कर रही है ना, अभी उसको मैसेज करके बुला दूंगा कि इधर मैं बैठी हूँ, वहां पे वो आ जाएगा 1 घंटे पहले, तेरे को फिर 1 घंटा लेट छोड़ेगा तो फिर ए भाई प्लीज प्लीज सीरियस। चलो बेटा आ जाओ। उसको डायरेक्ट उसको नहीं बोल के, मतलब उसके डायरेक्ट मम्मी को मैं बोलूंगा, ये क्या करता है थोड़ा सा। समझ में आ गया ना? तो बरोबर समझेगा उसको। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज, फॉर्मेशन। लिसन बेटा, वी आर गोइंग टू डू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एक पहला चीज बता देता हूं, लाइफ में कोई भी चीज जब फॉर्म होता है तो एनर्जी इज रिलीज। सो बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक रहेगा बेटा, तो हम लोग डेल्टा एच का वैल्यू क्या लेंगे बेटा? नेगेटिव। अगर मैंने बोला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज एक्स, तो आप लोग क्या लिखोगे? माइनस एक्स। दे विल नॉट गिव यू प्लस और माइनस, वी विल हैव टू टेक इट। आर यू गेटिंग इट? चलो आ जाते हैं कोणार्क बेटा। मैंने तेरे को बोला फॉर्मेशन ऑफ CO2, whenever we do formation definition is always what बेटा? 1 मोल, 1 मोल। अभी तू मेरे को बता, इसमें कौन कौन से अलग अलग एलिमेंट है? यू शुड नो हाउ टू राइट द इक्वेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन है बोल बेटा? अभी दो एलिमेंट कौन है अलग अलग? हाँ वेरी गुड, सी और ओ। नेचर में सी अपना सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड में भी ग्रेफाइट हम लोग जनरली लेते हैं। एनीवेज, ओ नेचर में ओ होता है या O2 होता है? वेरी गुड, O2। बराबर है कि नहीं बेटा? अब बेटा हमको क्या करना है पता है क्या बेटा? ये साइड कभी टच नहीं करने का, इसको बैलेंस करने का। बट ये इक्वेशन ऑलरेडी क्या है? इट इज ऑलरेडी, सपोज बेटा आई गिव यू तिलोड़ा, इफ आई गिव यू CH4 फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, तो इसके आगे तू 1 लिखेगा कभी भी। तो अभी तेरे पास यहाँ पे कौन कौन है बोल बेटा? विच 2 एलिमेंट आर देयर? कार्बन है और H है। बट नेचर में H कैसा होता है? H2। तो अभी तेरे को बैलेंस करना, इसको नहीं करने का। हाँ वेरी गुड, तो यहाँ पे क्या लिखेगा? 2। भव्या बेटा, इफ आई टेल यू फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल मतलब मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल, इसमें कौन कौन से अलग अलग एलिमेंट नजर आ रहे हैं? C, H और O। नेचर में C अकेला होता है सॉलिड फॉर्म में, H कैसा फॉर्म में होता है? ऑक्सीजन क्या होता है? O2। और ये तेरा हमेशा क्या रहेगा बेटा? 1 ही रहेगा। अब बेटा तू मेरे को बता, अपने को बैलेंस करना है तो, लेकिन हम लोग इसको टच करने का, H के बाजू में टच जाएगा 2 और यहाँ पे O 1 है, तो 2 को तू 1 कैसे बना सकते? वेरी गुड। अब समझा? ये इक्वेशन लिखने को आएगा सबको? क्या कर रहा है? फोन देख के क्या फोन को ऐसा बोल रहा है? हाँ तो फिर ये रे, आर यू आर गेटिंग इट? फॉर्मेशन, एंड फॉर्मेशन विल बी व्हाट? ऑलवेज एक्सोथर्मिक। रायन बेटा अब बस, अरे इतना क्या, एकदम इतना डर गया तू, इतना स्ट्रेस आ गया? नाउ सिमिलरली, अच्छा फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? डेल्टा H, एंड व्हाट विल राइट? F। इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ऑलवेज नेगेटिव। हाउ टू रीड दिस? एंथैल्पी ऑफ F मतलब फॉर्मेशन। क्लियर है?
Reyansh, now you have to tell me, beta, if I tell you combustion, enthalpy of what, beta? Enthalpy of combustion. So how to write delta H? और इस combustion का starting क्या है? C. Whenever we say combustion means burning in air. Burning in air. Air मतलब oxygen लेंगे. लेकिन बेटा जिसका भी हम कंबशन करेंगे दैट शुड बी ऑलवेज 1 मोल. दैट शुड बी ऑलवेज मतलब ऑलवेज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. ऑलवेज 1 मोल लेने का. अब इसका मैं आई गिव यू द ट्रिक. देखो दिस वी आपको सिलेबस में हाइड्रोकार्बन ही पूछेंगे. दे विल गिव यू हाइड्रोकार्बन. सो हाइड्रोकार्बन को कैन आई राइट इट दिस वे. अब कभी भी ऑक्सीजन के साथ जलाएगा तो अपने को क्या मिलेगा? CO2 and H2O ही मिलेगा. ओके. Here, how much is this, beta? X. So I'll write here X. Here, what is this? Y. So I'll write this what, beta? Y by 2. Don't force me to use biological word. Both of you. Yeah. Half of oxygen on right hand side. Now tell me, beta, if I take methane. Shut your mouth and pay attention here. मीथेन. अच्छा ये तेरा हमेशा क्या रहेगा? ये 1 ही रहेगा. इसको टच करने का नहीं. तो मीथेन में बेटा कभी भी हम लोग कोई भी जलाएंगे तो व्हाट विल गेट बेटा? ऑफ बाय डिफॉल्ट यू विल राइट दिस. यू शुड नो हाउ टू राइट. नहीं बेटा मैं तेरे को सही बोला. तेरे को बैठने है तो बैठ वरना निकाल दूंगा मैं. या बोल बेटा. x का वैल्यू कितना है यहाँ पर? यहाँ पे 1 है ना. तो यहाँ पुट 1. y का वैल्यू कितना है यहाँ पर? या तो 2. एंड हमने ऑक्सीजन हियर कैन 2 and 2 4. 4 का हाफ इज ओके. इफ आई गिव यू इथेन. ए दर्श बता इसका आंसर क्या करेगा? हाँ जल्दी बता. पहले मेरे को बता x का वैल्यू कितना है यहाँ पर? ये देखना x का वैल्यू कितना है? 2. तो यहाँ पे x डालेगा तो 2 आ गया. y का वैल्यू कितना है यहाँ पर? सो y by 2. तो हाउ मच इट विल बी? अच्छा अब ये O कितना है? टोटल काउंट कर. 4 + 3 7. सो 7 का हाफ 7 by 2. ये लिखने को आना चाहिए आपको. ठीक है. अभी आप बोलोगे सर वेयर हैव यू गिवन ऑल दिस थिंग? सो लुक हियर. किया था ये. फिर से बता रहा हूं क्योंकि आज सम्स करने के उसके. लुक बेटा वी डिड दिस. Standard enthalpy of formation. If bond is given, then how to do it? Then beta, I did this for you. Look, enthalpy of formation. ये दिख रहा है? ये देखना 1 मोल होना चाहिए था ये सब. और यहाँ पे आप चाहिए ना तो बाजू में लिख दो. इट विल बी ऑलवेज व्हाट. मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे. ऐसा लिख दो. ऑलवेज एक्सोथर्मिक. थर्मिक. अनथर्मिक रहेगा तो डेल्टा एच एफ. इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव. लिख लो. फॉर्मेशन इज ऑलवेज नेगेटिव. एक कोई भी चीज को जलाते तो हीट रिलीज होता है कि नहीं? कंबशन विल बी ऑलवेज ऑल्सो व्हाट? नेगेटिव. कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव. फॉर्मेशन एंड कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव. चलो बेटा अभी कंबशन का भी मैंने दे दिया था आपको. हेलो इधर पे आ जाओ. ये देख ए गौरी भी आई. इकड़े भाग. ये देख कंबशन दिख रहा है. ये देख ये शॉर्टकट ट्रिक. यहाँ पे आप लोग क्या करो. ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा तो आप क्या लिखना है यहाँ पे? हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड. समझेगा? ये बहुत इजी होगा आपको समझने के लिए. ये x + y by 4 मत लिखो. अरे यार मैं एक काम करता हूँ वहां पे मैं आपको करेक्शन ही करवा देता हूँ. क्या लिखोगे यहाँ पर? half of oxygen on right hand side. Half of oxygen on what? Right hand side.
क्लियर है? अच्छा मेरे को भी ये बताओ, तुम लोग में से किसका सॉलिड स्टेट नहीं हुआ है? सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर तेरा नहीं हुआ है बस, और तेरा नहीं हुआ है। अली का भी तेरा भी नहीं हुआ है। अली तू कहाँ पे आया था सॉलिड स्टेट? अली आने वाला तो देख, मंडे को है ना, कितने बजे आने वाली मंडे को बता? 12 बजे, 12 बजे मंडे को टेस्ट नहीं बे, थियरी पढ़ा के, पढ़ा के। हाँ सॉल्यूशन नहीं आता है। हाँ, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट बीसीसी एफसीसी। हाँ तो मैं ना मंडे को 12 o'clock को लेने वाला हूँ, ठीक है? तो जिसको आना है वो आ सकता है। 12 दोपहर को एक्स्ट्रा मैं बुला रहा हूँ। चलो बेटा आ जाओ, डन डन डन। ओके ऑल ऑफ, हाँ यू विल कम ना बेटा 12 का ना? हाँ ओके चलो। ये देख लिया ये? चलो नाउ देख बेटा, ये बेंजीन का सबका इक्वेशन अभी आपको लिखने को आ जाएगा ना बेटा? नाउ आई एम गोइंग टू डू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हेलो या वी डिड बेटा एंथैल्पी ऑफ, अभी आप बोलोगे सर आपने ये सब पढ़ा है, वो कहां पर है टेक्स्ट बुक में? देखो मैं तुमको बता देता हूँ बेटा। लास्ट क्लास मैंने आपको फेज ट्रांजिशन बताया था कि नहीं? अरे फेज ट्रांजिशन वी डिड और नॉट? टेल मी। अरे फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन वी डिड, सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, याद आ रहा है कि नहीं? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर एटमाइजेशन, मॉलिक्यूल में से एटम बनता है उसको एटमाइजेशन बोलते हैं। देन वी डिड बेटा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, पानी में डालेंगे तो पहला लैटिस एनर्जी ब्रेक होता है, और हाइड्रेशन, लैटिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड हाइड्रेशन विल बी ऑलवेज। तो ये सम भी हम लोग ने सॉल्व किया था। इसका बोला था व्हाट विल बी द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन? तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन विल बी व्हाट बेटा? लैटिस प्लस हाइड्रेशन। अभी एग्जाम में तेरे को दोनों वैल्यू दिया, लैटिस कितना दिया देख बेटा, नहीं माइनस नहीं, ये पॉजिटिव होता है, ये डेल्टा हाइड्रेशन नेगेटिव दिया है, बस ये डाल दे, इजी। दिस इज व्हाट वी हैव डन। अच्छा बेटा ना व्हेनेवर फॉर्मेशन एनीथिंग, फॉर्मेशन और एटमाइजेशन एनीथिंग, इट इज ऑलवेज फॉर व्हाट बेटा? 1 मोल। इट इज ऑलवेज फॉर हाउ मच बेटा? 1 मोल। अभी एग्जाम में मैं इस पे आपको कैसे सम्स पूछूंगा वो देख लो, ठीक है? इट इज ऑलवेज फॉर व्हाट बेटा? 1 मोल, 1 मोल। भाई तुम लोगों को ज्यादा समझ में आया, मैं उठ के समझाऊं क्या तुम लोगों को अभी? ठीक है, शट योर माउथ एंड पे अटेंशन। नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन। ए भाई येड़े, क्या बे येड़े, तू कभी जाता नहीं है क्या लाइफ में? ऐसा देख रहा है जैसे येड़े पागल के जैसे, ऐसा देख रहा है? हाँ okay, I'm explaining you this sum beta, and page A, all of you come to page number this कक्कर, यहाँ पे देख पेज नंबर 87 पे टॉप पे आ जाओ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्म, पहला एमसीक्यू देख वहां पे, ये वाला फोर्थ वाला। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट इन विच स्टेट दे हैव टोल्ड? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में कभी भी क्या होगा? 0। तो नॉट बेटा यू हैव टू आंसर दिस। स्टैंडर्ड में बेटा देख बहुत इजी है, इट विल बी 0। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक के लिए बेटा ये हीरो हीट क्या होना चाहिए? रिलीज। रिलीज होने के लिए बेटा कौन सा प्रोसेस होना चाहिए? फॉर्मेशन। थोड़ा दिमाग लगा, बहुत इजी है। गौरी येड़ी भागने के लिए। H2 से क्या बन रहा है? 2H। HH था तो उसको ब्रेक कर रहा है, ब्रेक कर रहा है तो तेरे को एनर्जी क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। सॉलिड से गैस में जा रहा है, सॉलिड से गैस में तो भी तेरे को हीट देना पड़ेगा ना? हाँ। ये 2Cl बन के क्या बन रहा है? फॉर्म हो रहा है, 2 Cl एटम आके
तो आंसर क्या होगा? फॉर्मेशन। लास्ट वाला क्यों नहीं होगा? ये सॉलिड से तू किसमें कन्वर्ट कर रही है? तो हीट करना पड़ेगा ना। समझा ना कैसे दिमाग लगाने का? फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, तो ये इजी। मैं अभी भी बोलता तुम्हारा आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम जो भी कौन कर रहे हैं तुम लोग, जो सीईटी वाले दे रहे हैं, तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम के एमसीक्यू मैंने जो बुक दिया उसमें हो जाने चाहिए। ठीक है, वी आर डन। नेक्स्ट सैटरडे को केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट मैंने पहले भी बोला था, और उसके नेक्स्ट सैटरडे को आयनिक इक्विलिब्रियम होगा। पहले बोल देता हूँ। ए ये ओके, नाउ दिस जियाउल हक, आजा बेटा। हेलो ऑल ऑफ यू, ए जस्ट शट योर माउथ एंड पे टेंशन। व्हाट इज रिटर्न 6? सर आप रेडी हो? अरे है इधर तो क्या करूँ, है तो क्या करेगा? एको रखने का तेरा रख देता था। ठीक है अभी बस, बस हाँ मस्त एकदम घूम करके आवाज आया वाइब्रेशन का। गौरी बेटा प्लीज, बेटा यहाँ पे देख ले एक बार प्लीज। हाँ नहीं नहीं, तुम आप दूर की बात करी, मैंने सबको बोला यहाँ पे। ए नाव्या बेटा, या नहीं सॉरी जियाउल हक था। ए 6 पॉइंट। मानस बेटा भी मैं मूव। कंटिन्यू करो। फॉर्मेशन और कंबशन इज ऑलवेज फॉर 1 मोल, ऑलवेज फॉर। अच्छा जिया बेटा, what they have told, 6.24 gram of ethanol is vaporized and how much energy it gave? 5.89. What will be enthalpy of vaporization of ethanol? When I say vaporization of anything, it should be for how much बेटा? तो 1 मोल होता है वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एच इज ऑलवेज फॉर व्हाट बेटा? 1 मोल के लिए होता है। तो 1 मोल क्या दिया वो लोग ने? इथेनॉल। अच्छा इसमें लोग ने इथेनॉल का क्या दिया है? वेट दिया है। क्या दिया है? तो इथेनॉल का वेट तो ढूंढ सकती है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है टोटल 6, वो ऑक्सीजन कितना है 1। Okay, this is 2 into 12 plus 6 into 1 plus 1 into 60. So how much you will get beta? Tell me. 46 gram. Hey, now look, पहला 1 mole मतलब how much it is? Have you understood? अच्छा अभी ये लोग ने कितने के लिए दिया? तो अगर 6.24 को जलाएगी तो कितना हीट मिलेगा बोलो बेटा? If you take 6.24, you will get how much delta H they are given? Tell me. 5.89. तो अभी तेरे को 1 मोल के लिए बोला है ना, तो 1 मोल के लिए तेरे को कितना लिखना पड़ेगा? तो 46 ग्राम होएगा, तो कितना? गॉट इट? क्रिस क्रॉस, क्रिस। वहां पे टेक्स्ट में बाजू में पाप आया हुआ, यहाँ पे ऐसा लिख दो ना पेंसिल से, वर्किंग फटाफट समझेगा। ऑलवेज गोइंग टू 1 मोल। अबे ये तेरा कौन सा एमसीक्यू मैंने किया? ये वाला easy beta. Again I'm telling you, thermodynamics numericals are very easy. Straight for unitary method. लिखने का है वो, ये लिखना बुक टेक्स्ट बुक में, बाद में बहुत कुछ सब। अरे कितना पूरा गांव बस सकता है वहां पे, क्या नहीं है जगह। टेक्स्ट बुक में ही तो लिखना है बाजू में, उसको पेज नंबर भी नहीं पता है लेडी को। अरे ये इधर पे, ये क्या है, ये सब है, ये देगा इधर, इतनी जगह नहीं है। हाँ बस पढ़ के मेरा काम बड़ा है। बेटा 12th एचएससी के मार्क्स नहीं आएंगे, अभी भी मैं बोल रहा हूँ। इट इज नॉर्मल दैट इन सी। कैसा कुछ भी बोल दिए, बोले मैं कहा नहीं मेरा बड़ा है, कहा ये है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
ए बेटा, sometimes what they will do, give you know बेटा, अभी इसमें बेटा कभी क्या होगा, ये दोनों दे देंगे और ये ढूंढने को बोलेंगे, और वो बता रहा अभी, देख जाओ। डन डन। हाँ, यू वांट आंसर फॉर दिस? लुक, आई विल शो यू बेटा व्हाट इज आंसर। here आया 43 पॉइंट ऐसा कुछ, देखते कौन सा है, कौन सा है। ए भाई, तुम्हारे नोट्स में भी मैंने दिया, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज फॉर 1 मोल, दिखाई दे रहा है ना? ये देख रहा है 46 का 6.24 का इतना, तो 46 का कितना? आई हैव गिवन इन द नोट्स। बेटा तुझे तेरा वो नोट्स मिला के दिमाग घूम गया, थर्मो वाला है ना? हाँ, उसमें है ये सब सॉल्व किया। चलो, या लेटर ऑन विल डिस्कस दैट। ए श्रुति बेटा, चल ये वाला सम कैसे करेंगी बोलो। श्रुति बेटा, पेज नंबर इज 87, पेज नंबर इज 87 एंड दिस 9th सम देख ऊपर से। हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस? जो भी देगा, मेरे में 9th है तो मेरे में क्या है, ये देखिए वाला सम। हाउ मच हीट इज इवॉल्व, हाउ मच हीट इज इवॉल्व। चला, 88 है। पेज नंबर 88, ये क्या है 9? पेज नंबर 88, पेज 88 ऊपर से 9 सब। नाउ श्रुति बेटा, व्हाट दे आर टोल्ड, they have given this equation, they have given us delta H or not, tell me dear. हेलो, ए हीट बेटा देख ले इधर, ये डेल्टा एच दे दिया है और वो मांगी सर, मैं कुछ मैं इतने सारे नहीं मांगे थे सर, मैंने एक ही मांगा था, इसको इतने सारे देने की क्या? मांगता है क्या रे बाबा, व्हाट मैन जेडी। ये देखो इधर आ जा। नाउ यू टेल मी श्रुति बेटा, what you are going to do? They have told 12 grams CO. They have told what beta? And in equation how much, तो भी जो 12 ग्राम CO, कितना मेरे को 12 ग्राम CO जलाएगा तो कितना हीट मिलेगा, वो अपने को ढूंढना है। तो ये पूरे इक्वेशन में CO कहाँ पे नजर आ रहा है तुझे? देख, रिएक्टर में दिखाई दिया, तो यू विल सेलेक्ट CO। CO कितना दिया बेटा वो लोग ने? और ये 4 CO के लिए डेल्टा H कितना दिया वो लोग ने? हाउ मच इट इज? -1200 किलो जूल। देखो कैसे करने का, बहुत इजी है। 4 CO का, अच्छा 4 CO में बेटा C का वेट कितना होता है? C प्लस ऑक्सीजन तू लिख सकती है कि नहीं? तो C का कितना होता है बेटा? 12, मतलब कितना होगा बेटा? 4 × 28, 4 × 28 ग्राम होता तो तुझे कितना हीट मिलता? -1200। फिर अभी पूछा कितना है, therefore जब 12 ग्राम होएगा तो कितना? इजी, बरोबर है। ओके, अच्छा आप लोग बोलोगे सर ये आपने किया है, तो मैंने किया है, ये भी मैं बताता हूँ। जो पूछा रहेगा वो लेने का। लुक अगेन, आई एम टेलिंग यू, थर्मोडायनामिक्स सब्स आर वेरी इजी डियर। खाली बड़ा है चैप्टर, बाकी न्यूमेरिकल्स आर वेरी इजी। क्या है? ब्रेक ब्रेक देने वाला नहीं है तुम लोग, इतना आ गया तो नहीं 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 कुछ नहीं। हाँ बेटा करने देना बेटा, बस थोड़ा सा 340 छोड़ देगा, कुछ नहीं, कुछ ब्रेक नहीं देने वाला हूँ मैं, बस हो गया। नहीं नहीं नहीं, स्टॉप वॉच लगा। बस कुछ नहीं मिलने वाला है तुम लोगों को, बस चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो। डन डन दिस, ठीक है? ओके, नेरिसा, शिनेल बेटा, ध्रुविन, दीप, आर यू ऑल गेटिंग इट बेटा? हेलो, वेरी इजी न्यूमेरिकल्स। Yes, Yes. sir. सब लोगों को अपनी तरह समझाए क्या? देखो
Look, who? Nerisha was answering right now only. She answered right. Hey, hi Nerisha. Hello. Hi, sir. Look, she is answering. Look. Eh? Okay. Yeah, she will answer. Don't worry. Wait. Now look, boys. Where was this numerical given, beta? Look here. Can you see 4CO? In my notes also it is there. Shh. In my notes also it is there. 4CO and this was given. So 4CO we calculate. So 12 will be how much? ब्रेक कुछ नहीं मिलने वाला है. पहले बोल दिया. दिमाग खराब मत कर. Don't shut your shut up. Just shut up. I want all of you to come to page number 89. 89 top sum. 89 top sum. Manas, you are going to do it. Page number 89 top sum. What they have told? Tell me. 6 grams of Oxygen. CIF. Then CLF जो भी नहीं है क्लोरीन फ्लोराइड. Okay, क्लोरोफ्लोराइड बेटा. और वो CLF है, वो CIF नहीं. ये क्लोरीन है. इंटर हैलोजन कंपाउंड. वो जान देना तू. तेरे को जो बोल रहा है उस पर ध्यान दे. हाँ. What is 6 ग्राम ऑक्सीजन को जलाने को कितना चाहिए? तो बेटा देख यहाँ पे मैंने क्या लिखा है. ऑक्सीजन वो लोग ने दिया था बेटा 6 ग्राम. 6 ग्राम किधर गया भाई? ये ले. 6 ग्राम के लिए कितना डेल्टा एच चाहिए था? 38.55. अभी वो लोग ने क्या बोला है ढूंढने के लिए? व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी? स्टैंडर्ड इज ऑलवेज फॉर हाउ मेनी मोल्स? 1 मोल. तो 1 मोल ऑफ, देयरफॉर 1 मोल के लिए कितना? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बेटा? 2 into 16. तो 2 into 16 के लिए कितना? हो गया. कितना इजी था बोलो? आर यू गेटिंग इट और नॉट? टेल मी. हाँ तो एक तो क्रॉस करेगी ना ये ले भाई ले. 2 into 16 into 38.5 अपॉन 6 आया कि नहीं? झिंगी અહીંયા ऑक्सीजन આપ્યું છે ને, तो 6 ग्राम ऑक्सीजन को जलाएगी तो इतना दिया है कि नहीं बोल? तो 6 ग्राम gives this much. So 32 will give how much? Easy. I hope all of you have understood these numericals are very, very easy. Yeah. Now we are going to go for, look, I did all the numericals from your textbook, all the relative numericals we have done related to this. Now we are going to go for the very, very important part. And hey, this sum was also solved here, beta. Where it was solved, hey baby, देख 32 होगा तो डेल्टा एच होगा. ये आजो 6 ग्राम का इतना दिया था तो 32 का कितना होगा? क्लियर है? फॉर्मेशन इज ऑलवेज फॉर 1 मोल. ना बेटा ये फॉर्मेशन और कंबशन मैंने आपको बता दिया. क्लियर है? इसके बाद आएगा बेटा स्पॉन्टेनिटी. नहीं, इसके बाद बेटा है ना, लेट मी टेल यू, ये पार्ट जब खत्म हो जाता है ना बेटा, कौन सा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और ये, तो इसके नीचे आप है ना इंपॉर्टेंट ऐसा लिखो यहाँ पे, हेस लॉ. विच लॉ? हेस लॉ. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आएगा एग्जाम में, बोर्ड में एवरी अल्टरनेट ईयर आता है. हाँ, व्हाट इज, नहीं लास्ट ईयर नहीं आया था बेटा. व्हाट इज, लेकिन इससे रिलेटेड सम आया था. व्हाट इज हेस लॉ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज मार्क दिस हेस लॉ. मैं बता रहा हूँ ना, सुनेगी क्या? हेस लॉ. ओके, हेस लॉ. हेस हेस हाँ हेस हेस हेस. अबे वो ये हैश है, वो हैश नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हैं. हैश एक नाम है, ठीक है ना बेटा? और कौन सा है? और इसके वो हैश हैश.
It is a drug. अच्छा ड्रग Yeah, she will guide you. आर्किटेक्चर ऐसे They make in architecture, there is one thing, they make a plant which is derived from, that power from सर सर now एकदम सिंपल बताओ क्या इसमें अभी ने एक रिएक्शन है, लुक देयर इज वन रिएक्शन, एक रिएक्शन है, मैंने उसको एक स्टेप में किया, कितने स्टेप में किया, एक स्टेप, डायरेक्ट यहाँ से ये रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो रहा है, चलो उसमें टोटल एनर्जी हुआ लेटर से 100। अब वही रिएक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, आई स्टार्ट से में पहला मैंने ए को बी में कन्वर्ट किया, बी को सी में किया, सी को डी को वापस किसमें कन्वर्ट किया, कभी रिएक्शन तो सेम ही था, मैंने एक किस स्टेप में किया, वन स्टेप, दूसरा कैसा था, मल्टी स्टेप। तो ओवरऑल चेंज इन बोथ द रिएक्शन इन वन स्टेप का टोटल जो एनर्जी है वो मल्टी स्टेप का एनर्जी भी कितना होगा, एकदम। और एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मैंने ना 2 कुरकुरे के पैकेट लाए, किसके, दोनों कुरकुरे के पीछे लिखा था 100 कैलोरीज, कितना लिखा था, 100 कैलोरीज, ठीक है बेटा, ओके। मैंने एक कुरकुरे का पैकेट रेयांश को दिया, रेयांश ने एक ही टाइम में पूरा खा गया, ओके, इन वन स्टेप, एक ही स्टेप में वो खा गया पूरा, तो इसको वन स्टेप में टोटल एनर्जी कितना मिला, 100 कैलोरीज, 100 कैलोरीज। अब फिर अपने ये रिपोर्टर पोपट लाल को हमने दिया, इसने क्या किया, पूरा कुरकुरे का पैकेट खाया, आज अंदर से थोड़ा 5 तक खाया, फिर बंद कर दिया, कल खाया, ऐसा उसने 4 खा, आज में बंद कर दिया, ठीक है ना बेटा, क्लियर है, तो उसने 5 दिन तक खाया, अच्छा, इसको एक ही टाइम में कितना कैलोरीज मिला, इसको पूरा 5 दिन का मिला के कैलोरीज कितना मिलेगा, both of them they did same act of eating kurkure or not, so when there is the same reaction, if it takes place in one step or if it takes place in what beta, multiple step, the overall change in energy will be one and the same, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, Hess law, क्या कहते हैं उसको, Hess। तो ये बेटा टेक्स्ट बुक में मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, या आई एम कमिंग टू इट, पेज नंबर इज येटे, देख बेटा ये हम लोग ने जो सम किए थे ना आज, अरे बेबी ये देख ना, यहाँ पे बॉन्ड दिया था और यहाँ पे ना एक बॉन्ड नहीं दिया था, CCl, वो मैंने करवा दिया था आप लोग, पेज नंबर 80 पे बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, Hess। This law is very very important. Overall enthalpy change for a reaction is equal to the sum of the enthalpy of the individual step. Overall change is equal to the sum of the enthalpy of individual step. Clear है? That is what बेटा Hess's law. Hess एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ Hess, स्टेट Hess लॉ एंड स्टेट एप्लीकेशन ऑफ Hess लॉ। जितना बात करोगे ना रायन बेटा उतना लेट होगा, याद रखना। Hess लॉ से बेटा कोई भी मल्टीपल स्टेप है उसका मैं एनर्जी ढूंढ सकता है, जो एक्सपेरिमेंटली अगर मुझे नहीं मिलेगा तो। अब इसमें क्वेश्चन कैसा होता है बेटा, आपको वो लोग 2-3 इक्वेशन देंगे और एक आपको बोलेंगे कि ये गिवन इक्वेशन का एनर्जी ढूंढो, दे विल गिव यू वन रिक्वायर्ड इक्वेशन एंड दे विल गिव यू अदर 3 इक्वेशन एंड दे विल टेल यू फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन व्हाट विल बी डेल्टा एच, व्हाट विल बी, तो हम लोग को क्या करने का, जो भी रिक्वायर्ड गिवन इक्वेशन होगा उसके साथ कीड़ा करने का, कीड़ा मीन्स व्हाट, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन मीन्स व्हाट, आइदर यू मल्टीप्लाई, आइदर यू डिवाइड, आइदर यू रिवर्स इट, आइदर यू, अच्छा कभी भी रिएक्शन को रिवर्स करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए x है तो रिवर्स के लिए क्या हो जाएगा, -x, ओके। अब देखो एक सम बताता, बहुत इजी है, वहां बोलोगे कितना चिंदी है ये, ओके। ये मेरा गिवन देखो, मैंने आपको किसके लिए बोला है ढूंढने के लिए, चलो आजा, ए युवराज बेटा टेल मी व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन दिस, पेज नंबर 80, just see the question, don't look at the answer, it is very very easy. I want you all to think about it. Shh. What they have told us to do.
ओके वेट, तू नहीं, अली बेटा तू मेरे को बताएगा, रुक जा। ए चुप। अली अपने को रिएक्शन इसके लिए ढूंढने का है। ये अपने को बोला है इसका डेल्टा एच ढूंढो। क्या ढूंढो? देखो बेटा, हाँ इसका डेल्टा एच ढूंढने का है, बराबर है। और अपने को ये दो इक्वेशन दिए। नाउ हमको क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डू सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन इन दिस, एंड आफ्टर एडिंग दिस टू आई शुड गेट दिस। तो क्या करने का? अभी तो मेरे को बता, यहाँ पे Fe2O3 कहाँ पर है? प्रोडक्ट साइड में या रिएक्टेंट साइड में? बोल बेटा। ये क्या है? प्रोडक्ट साइड में। अच्छा, ये अपने गिवन इक्वेशन में कहां पर है ये? तो मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन 1 को क्या करोगे? रिवर्स इक्वेशन 1। रिवर्स क्यों रिवर्स किया? क्योंकि हमको ये यहाँ पे रिएक्टेंट में है अपने को, लेकिन पूछा कहां पर है? प्रोडक्ट। तो इसको मैंने रिवर्स किया तो मुझे क्या मिलेगा? 2Fe प्लस Al2O3। अभी ये जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बन जाएगा। गौरी और ये भाई कुनाल बहुत इजी है, देख यार, और ये आएगा। ये 3 मार्क के लिए आता है बेटा। ओके, ये हाँ, ये इसको रिवर्स करेंगे तो क्या मिल जाएगा? अच्छा बेटा, ये तूने रिवर्स किया तो ये माइनस के बदले क्या हो जाएगा? वेरी गुड। ये डेल्टा एच अभी तेरा क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। अच्छा, दूसरा तेरे को वो लोग ने क्या बोला था? ये ऑक्सीजन 3/2, यहाँ पे भी 3/2, यहाँ पे भी 3/2 ही है ना। तो इक्वेशन 2 को कुछ टच करने का, तो मैं इक्वेशन 2 को एज इट इज लिख देता हूं। शट योर माउथ ऑल ऑफ यू। इसका आंसर कितना था? वो माइनस है, वो माइनस ही रहने वाला है। अब क्या करने का? इन दोनों को ऐड कर दो। ये दो इक्वेशन अपने को जो मिला, ए डी यहाँ जो, हाँ, इन दोनों को क्या करने का? ऐड। अच्छा, ये पूरा कीड़ा करने के बाद, आफ्टर डूइंग ऑल दिस मैथमेटिकल ऑपरेशन, व्हेन यू ऐड दिस यू शुड गेट अवर डिजायर्ड इक्वेशन। इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस, दैट मींस यू आर गोइंग समवेयर रॉन्ग। चलो अब इन दोनों को ऐड करो। क्या क्या कॉमन है? ये एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम कट हो जाएगा कि नहीं? बोलो बेटा। अरे देखना फर्स्ट, और यहाँ पे क्या है? Al2O3 कट हो जाएगा कि नहीं? बोलो। So what I'll get? 2Fe plus 3/2. And here what is remaining? Is it matching with this equation? Oh yes. हो रहा है ना बेटा? मैच हो रहा है ना? अच्छा, हम लोग राइट है। अच्छा, फिर अभी क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड किया तो ये दो भी ऐड होगा कि नहीं? बोलो। बस ये दो को ऐड करके जो आंसर आएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर है। हो गया सब। कितना इजी है? बोलो हेलो, बोलो ना। ओ गौरी भाई देख बेटा, इजी है ना ये? हाँ, इन दोनों को ऐड कर देने। हाँ, ये विल ऐड दे सब बेटा। हाँ मालूम है मेरे को, 2 मिनट रुक जा। इजी। तो लो बेटा, दिस इज व्हाट वी हैव डन हियर। ये देखो बेटा, रिवर्स किया फर्स्ट को और ऐड किया। देख, फिर ये दोनों को ऐड करने का, ये दोनों का आंसर जो आया, देख ये आंसर आया। क्लियर? चलो बेटा अभी ये वाला करेंगे। आजा ए रायन बेटा, इधर आजा। क्या करेगा बोल हीरो? हाँ, आई विल शो यू। उस दिन हम लोग एक दिन वीडियो देखेंगे इसका, रायन का। हाँ एकदम मजा आएगा। हाँ मर गया वो। लेकिन इधर आजा रायन बेटा, दिस इज अवर डिजायर्ड इक्वेशन। Now they have given these three, so we have to do certain mathematical operation and either add, subtract, whatever. You should get this. पहला मेरे को बता, यहाँ पे तेरा SiO2 तेरा यहाँ पे कहाँ पर है? प्रोडक्ट में। और तेरे को चाहिए कहाँ पर? तो AED देखने जब, तो पहले को हम लोग क्या करेंगे? रिवर्स। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया? रिवर्स। तो डेल्टा एच ये पॉजिटिव था तो दिस विल बिकम नेगेटिव, था तो दिस विल बिकम। ये भाई ये 911 आ गया, देख यहाँ पे, ठीक है ना? 911 ही वैल्यू है ना, देख। ठीक है। अब रायन, दिस इज 2 कार्बन एंड दिस इज 1 कार्बन। 2 + 3 करेगा तो क्या हो जाएगा? 2 + 1 नहीं, सॉरी 2 + 1, ये 1 है और ये 2 है ना, तो 2 + 1 करेगा तो कितना हो जाएगा? 3 ना। तो ये 3 हो रहा है कि नहीं? तो ये दो इक्वेशन को हम लोग टच करेंगे
नहीं, विल नॉट टच, विल कीप एज इट इज। तो इसको उठा के एज इट इज मैंने रखा यहाँ पे, देख, और इसका जो भी वैल्यू था वो लिख दिया इसे माइनस। देन दिस विल ऑल्सो आई कीप एज इट इज। कैन यू सी, नो नीड टू डू एनी कीड़ा। Now you add this all three. You should get this equation. Are you getting or not? Let us see. क्या क्या cancel होगा? Ryan, tell me. What all thing can be cancelled? This oxygen will get cancelled or not? Yes. Say no, Ryan. Hello. Yeah. Yeah. Now here you see. What happened? Okay, Nerissa, bit, are you getting it? Chanel, are you getting it? Hello. Yes, sir. Ruvin. Now, Yes. now, yeah. What? देखो बेटा, जितना टाइम पास करोगे ये लास्ट समय देख कर लो इधर। हाँ, तो फिर बातें कर रहे हो तुम लोग। हाँ, so look, this is SiO2. I am getting this SiO2 or not as it is? 2 carbon and 1 carbon, it will become 3 carbon or not? Tell me. वे नाविया बेटा कितना फोन देखेगी यार, बस करना यार। This is 1 SI. Hey, sorry beta, I forgot to cancel this. My bad. Hey, this silicon will get cancelled or not? Tell me. अभी बचा कौन? SiC2CO मिलेगा कि नहीं? इतना इजी था, बोलो। हाँ, लेकिन बेटा ये खाली इतना मत, ये सबको ऐड करना है फिर। That is now what I want you all to do बेटा, listen. मालूम है 1 मिनट है, मैं ये खाली होमवर्क दे रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। This, hey, listen all of you. Homework is this 16th and 17th. 16 and 17. These two sum you are going to do. 16 and 17. Hess law it is. Clear? That's all for today. Chalo then. Bye bye everybody.